कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुस्न खूबी समझेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर मैं दरअसल एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 15 को समझाने के लिए शूट कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक बेहतरीन नक्शा बनाया है। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इट इज 10 o'clock कि ये 10 बज रहा है एंड आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 10 o'clock के 10 बजे मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड इट्स 11 o'clock और यहाँ 11 बज रहा है एंड आई फिनिश्ड टीचिंग एट 11 o'clock और 11 बजे मैंने पढ़ाना मुकम्मल कर दिया था। इट मीन्स आई वॉज टीचिंग एट 10:30। इसका मतलब ये हुआ कि 10:30 बजे मैं पढ़ा रहा। डियर स्टूडेंट्स, इट्स 11:15। यहाँ पर 11 बजकर के 15 मिनट हो रहा है एंड आई कंप्लीटेड टीचिंग 15 मिनट्स अगो और 15 मिनट पहले ही मैंने पढ़ाने के काम को पूरा कर लिया था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 11 बजे मैंने पढ़ाने के काम को ख़त्म कर दिया था, मुकम्मल कर दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई स्टार्टेड टीचिंग इज अ पास्ट सिंपल टेंस एंड आई वॉज टीचिंग इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई फिनिश्ड टीचिंग इज ऑल्सो पास्ट सिंपल टेंस and I have taught is a present perfect. So today we are going to learn PRESENT present and PERFECT perfect. So what is present perfect? Present perfect is a tense where you can talk about any completed action which you finished recently. Suppose that I have finished my teaching 15 minutes ago, so I can say I have taught, मैं पढ़ा चुका हूँ। Dear students, in present perfect we use first of all SUBJECT subject and after that we use the word have and has and after that verb third form. Okay, so I hope so that you have understood, and this is the object. So this is a simple structure of present perfect: subject plus have has plus third form plus object. If you want to translate present perfect into Urdu and Hindi language, then you can translate या है, ई है, ए है और चुका है, चुकी है, चुके हैं, etc. So you can translate present perfect like this: या है, ई है, ए है और चुका है, चुकी है, चुके हैं, etc. For example, if you ask have you taught, क्या आप पढ़ा चुके हैं, then I answer yes I have taught, हाँ मैं पढ़ा चुका हूँ। no I have not taught, नहीं मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ। Dear students, now let's know what is the short form of the word have in present perfect. The word have short form is apostrophe VE, as you can see in the circle. Okay, and the word has, its short form is apostrophe S, as you can see in the circle. Like this, have not short form is haven't and has not short form is hasn't. So I wanna request you that you should use short form from today in your English speaking, writing and reading. Dear students, let's understand this chapter in Essential English Grammar. Dear students, let's start to learn unit number 15 of Essential English Grammar. As you can see on the screen, the topic of my today's talk and my today's class is I have done, is a present perfect. And this is the first chapter of present perfect. It means that you will also learn
present perfect in chapter number 16. That will be present perfect second. So dear students, let's understand what is present perfect. I wanna tell you, when you start any activity, then you will finish that activity at any time. It can't be possible that you will not stop the activity which you have started. जब भी दुनिया के किसी भी काम को आप शुरू करते हैं तो एक न एक वक्त में उस काम को आप ख़त्म कर देते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप दुनिया के किसी काम को शुरू करें और वो हमेशा तक चलता रहे, वो कभी ख़त्म ही ना हो। एक शख्स को भूख लगी, वो खाना खाने का आगाज़ किया, 5 से 10 मिनट तक लगेगा उसे खाना खाने में, उसके बाद वो खाना खाने के अमल को पूरा कर लेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर एक शख्स को नमाज़ पढ़ना है तो अल्लाहु अकबर के ज़रिए से वो अपनी नमाज की शुरुआत करेगा और चंद मिनट बाद अस्सलामु अलैकुम के ज़रिए से वो अपनी नमाज को फिनिश कर देगा। सो व्हेन यू स्टार्ट एनी एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जब भी किसी काम को आप शुरू करते हैं, यू फिनिश्ड दैट एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद आप उस काम को पूरा कर देते हैं। And when you talk about any completed action that you have complete recently, और जब कभी भी आप ऐसे कामकाज के बारे में बात करते हैं जिसे आपने शुरू किया और उसे ख़त्म भी कर दिया, लेकिन ख़त्म किए हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, you have finished recently, हाल ही में आपने उस काम को ख़त्म किया है, तो उस completed action के बारे में बातचीत करने के लिए we use present perfect, तो हम present perfect को इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस किताब से समझते हैं। साहिब किताब आपको एक एक पॉइंट को बेहतरीन तस्वीर के साथ समझाते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ तस्वीर के माध्यम से समझी जाती है तो वो हमारे जहनों में खूब अच्छी तरह पेवस्त हो जाती है। तो साहिब किताब पॉइंट नंबर 1 के अंदर कहते हैं, हियर इज़ अ वन पर्सन, ये एक शख्स है, एंड ही हैज़ अ शूज़, उसके पास जूता है। ही इज़ क्लीनिंग हिज शूज़, वो अपने जूते को साफ कर रहा है, मतलब जूते को साफ करने का अमल और प्रक्रिया शुरू कर दिया है। एंड आफ्टर सम टाइम वो उस जूते को साफ करने के अमल को पूरा करके जब वो चेयर पर बैठ जाता है तब वो कहता है, आई हैव क्लीन्ड माई शूज़, कि मैंने अपने जूते को साफ कर लिया है। इट मीन्स दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज शूज़, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने जूते को साफ कर लिया है। सो अभी मैंने बताया ना कि जब कभी भी आप किसी भी अमल को शुरू करते हैं और अमल को करते करते जब आप उसे फिनिश कर देते हैं और तब आप उस कंप्लीटेड एक्शन के बारे में, उस मुकम्मल शुदा कामों के बारे में जब आप बात करते हैं, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। चुनांचे कुर्सी पर बैठे हुए इस शख्स के मुंह से जो ये जुमला निकला, आई हैव क्लीन्ड माई शूज़ेस, कि मैंने अपने जूते को साफ कर लिया है, इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड विद द सेकेंड एग्जाम्पल। चलिए हम दूसरी मिसाल से समझते हैं। दे आर एट होम, ये दो शख्स जो कि सोफे पर बैठे हुए हैं, कहते हैं कि दे आर एट होम, के वे लोग घर पे हैं। दे आर गोइंग आउट, वो बाहर जा रहे हैं। दे हैव गॉन आउट, वो बाहर जा चुके हैं, क्योंकि सोफे पर अब वे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो पहले वो बैठे हुए थे, फिर उन्होंने जाने के अमल को शुरू किया और कुछ समय बाद वो लोग चले गए, यानी जाने के अमल को पूरा कर लिया। तो कहते हैं दे हैव गॉन आउट, कि वो लोग बाहर जा चुके हैं। दे आर नॉट एट होम नाउ, फिलहाल अब वो लोग घर पे नहीं हैं। इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। Dear students, let's read point number B. As you can see, there is written has cleaned, have gone, etc. is the past perfect. यही past perfect होता है। So what is past perfect and how you can recognize it is past perfect tense in English sentences, in English books, in English newspaper and English magazine. So I'm going to tell you a very easy way that you can recognize it is a past simple tense. And the simple way is that you will have to care there is used have or has plus verb third form.
आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है जुमले के अंदर कि क्या यहाँ पर हैव और हैज़ और वर्ब के थर्ड फॉर्म को प्रयोग किया गया है। अगर हाँ तो हैव हैज़ दलालत करेगा प्रेजेंट पर और वर्ब का थर्ड फॉर्म दलालत करेगा परफेक्ट पर। इस तरह ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले जुमले के अंदर हैज़ क्लीन्ड है और दूसरी मिसाल के अंदर इन्होंने हैव गॉन लिखा था। तो हैज़ क्लीन्ड और हैव गॉन ये दोनों जुमले प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट? द राइटर इज टेलिंग यू इन द बॉक्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर क्या है, साहिब किताब बॉक्स में आपको निशानदेही कर रहे हैं। साहिब किताब कहते हैं आई वी यू दे के साथ हम हैव को प्रयोग करते हैं, जबकि ही शी इट सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हैज़ को प्रयोग करते हैं। और हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है अपोस्ट्रॉफी वी। अगर आप निगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो हैव नॉट होगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा हैवेंट। इसी तरीके से हैज़ के शॉर्ट फॉर्म पर गौर करें तो हैज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है अपोस्ट्रॉफी एस, और हैज़ के साथ अगर नॉट लगा हुआ है तो हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा हैजेंट। एंड आफ्टर दैट तीसरे जुज के तौर पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्लीन्ड, मैंने साफ कर दिया है। वी हैव फिनिश्ड, हमने पूरा कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड, तुमने शुरू कर दिया है। दे हैव लॉस्ट, वे लोग खो चुके हैं। इसको आप निगेटिव अंदाज में अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह बोलेंगे, आई हैवेंट क्लीन्ड, मैंने नहीं साफ किया है। वी हैवेंट फिनिश्ड, हमने मुकम्मल नहीं किया है। दे हैवेंट लॉस्ट, उन्होंने नहीं खोया है। यू हैवेंट स्टार्टेड, आपने शुरू नहीं किया है। इसी तरीके से ही शी इट के साथ आप जुमले बोलेंगे, ही हैज़ डन, उसने कर दिया है। शी हैज़ बीन, वो बन गई है। इट हैज़ गॉन, वो चला गया है। इसको आप निगेटिव अंदाज में कुछ इस तरह बोलेंगे, ही हैज़ेंट डन, उसने नहीं किया है। शी हैज़ेंट बीन, वो नहीं बनी है। इट हैज़ेंट गॉन, ये नहीं गया है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, then it is a very simple. You will have to use have or has before the subjects, because here is have and has are helping verb. And if you want to make any kinds of question, then first of all you will have to use helping verb after that subjects. So you can say have I, have we, have you, have they, and has he, has she, has it. For example, have I cleaned, क्या मैंने साफ कर दिया है। हैव यू फिनिश्ड, क्या हमने मुकम्मल कर दिया है। हैव यू स्टार्टेड, क्या आपने शुरू कर दिया है। हैव यू लॉस्ट, क्या तुम खो चुके हो। हैज़ ही डन, क्या वो कर चुका है। हैज़ शी बीन, क्या वो बन गई है। हैज़ इट गॉन, क्या वो चला गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट का तर्जमा आप चुका है, चुकी है, चुके हैं से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसका ट्रांसलेशन या है, ई है, ए है से भी कर सकते हैं। यही चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत है उर्दू ज़ुबान के अंदर। चुनांचे उर्दू ज़ुबान के वो तमाम जुमले जिनमें ये अलामतें पाई गई हों उसे आप आंख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट तस्वुर करेंगे। इसमें चुका, चुकी, चुके परफेक्ट पर दलालत करेगा, और है, हैं, हो, हूँ ये प्रेजेंट के ऊपर दलालत करेगा। इसी तरह या, ई, ए ये परफेक्ट के ऊपर दलालत करेगा, और या के साथ है लगा हुआ हो तो है, हैं, हो, हूँ प्रेजेंट के ऊपर दलालत करता है। इस तरह अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बन जाएगा। अब मैं आपके सामने उर्दू ज़बान के कुछ जुमले का तज़किरा कर रहा हूँ, आप गौर व फिक्र करें कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं है। वो आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है या नहीं है? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर या तो पाया गया लेकिन या के साथ है नहीं पाया गया। या सिर्फ परफेक्ट की अलामत हो सकती है लेकिन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहेंगे।
लेकिन अगर इसी जुमले को आप ऐसे कहते हैं वो आया है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेगा होगा। या दलालत करेगा परफेक्ट पर और है दलालत करेगा प्रेजेंट के ऊपर। और डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ट्रेन जा चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेगा है या नहीं है? 100% है। इसमें चुका चुकी ने दलालत किया किस पर? परफेक्ट के ऊपर, और है ने दलालत किया है प्रेजेंट के ऊपर। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट का सेगा हो गया। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अहेड। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि साहिब किताब आगे एक बॉक्स के अंदर क्या कहना चाहते हैं। साहिब किताब कहते हैं कि रेगुलर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल इज ईडी। जितने भी हमारे पास रेगुलर वर्ब होते हैं उसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ईडी पर ख़त्म होता है, द सेम एज द पास्ट सिंपल। और ठीक इसी तरीके से पास्ट सिंपल में भी होता है। पास्ट सिंपल दरअसल वर्ब के सेकेंड फॉर्म को कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। तो वो तमाम वर्ब जो कि रेगुलर वर्ब के कबील से होते हैं वहाँ पर सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए भी ईडी लगता है और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी ईडी लगता है। इसीलिए पास्ट सिंपल भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। अब आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर ये वाला वर्ब ईडी वाला ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है या पास्ट सिंपल के लिए? तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में हैव या हैज आता है। चुनांचे अगर कहीं भी आपके सामने हैव हैज के साथ वर्ब का ईडी वाला फॉर्म नजर आए तो आंख बंद करके आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट तस्वुर करिएगा, और विदाउट हैव हैज के आपको वर्ब का ईडी वाला फॉर्म नजर आता है तो आप उसे पास्ट सिंपल टेंस तस्वुर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन का सेकेंड फॉर्म क्लीन्ड होता है, और एक जुमला आपने देखा आई हैव क्लीन्ड, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या पास्ट सिंपल का? जवाब है प्रेजेंट परफेक्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैव आया है। हैव दलालत करेगा प्रेजेंट के ऊपर और क्लीन्ड में ईडी वाला फॉर्म दलालत करेगा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म के ऊपर, और इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स फिनिश का सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड होता है और उससे बना हुआ एक जुमला होगा वी हैव फिनिश्ड कि हमने मुकम्मल कर दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेगा है। स्टार्ट से सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड होगा। अगर आपने कोई जुमला देखा जहाँ लिखा है शी हैज़ स्टार्टेड तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेगा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे साहिब किताब कहते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब द पास्ट पार्टिसिपल इज समटाइम द सेम एज द पास्ट सिंपल एंड समटाइम डिफरेंट। इर्रेगुलर वर्ब जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी लिस्ट मैंने अपनी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात के शुरू के 10 अय्याम में जिक्र किया है। और अगर आप इर्रेगुलर वर्ब की मज़ीद फहरिस्त चाहते हों तो आप इसी किताब में अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3 का मुताला करें, वहाँ पर बहुत सारे इर्रेगुलर वर्ब्स का तज़किरा किया गया है। साहिब किताब कहते हैं कि जो इर्रेगुलर वर्ब होता है उसमें जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, कभी कभी तो वो सेम बेआइनी उसी तरह होता है जिस तरह उसका सेकंड फॉर्म होता है यानी पास्ट सिंपल वाला, और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बाय सेकंड फॉर्म होता है बॉट और थर्ड फॉर्म होता है बॉट। तो बॉट और बॉट ये दोनों एक ही शक्ल है। अगर आप सिर्फ बाय कहते हैं तो इसका तर्जमा होगा खरीदो। आई बॉट सब्जेक्ट लगाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म आपने यूज़ किया तो ये पास्ट सिंपल होगा और तर्जमा होगा मैंने खरीदा था। एंड आई हैव बॉट, अब इसका तर्जमा बदल जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेगा है तो अब इसका तर्जमा होगा मैंने खरीदा है। इसी तरीके से हैव का मतलब होता है पास रखो। ही हैड का मतलब उसके पास था। ही हैज़ हैड का मतलब उसके पास हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एक दूसरा वर्ब लीजिए ब्रेक। इसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक और इसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। यहाँ पर देखिए तो फ़र्क हो गया वर्ब के सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। तो वही तो इन्होंने कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इर्रेगुलर वर्ब में कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक का मतलब होगा तोड़ो। आई ब्रोक मैंने तोड़ा। आई हैव ब्रोकन मैंने तोड़ दिया है। सी इसका सेकंड फॉर्म होता है सा और थर्ड फॉर्म होता है सीन, बिल्कुल अलग अलग। तो सी का मतलब देखो, यू सा का मतलब तुमने देखा, यू हैव सीन का मतलब तुमने देखा है। इसी तरीके से फॉल, लफ्ज़ फॉल का मतलब होगा गिराओ। इट फेल का मतलब ये गिर गया।
इट हैज़ फॉलन का मतलब होगा ये गिर गया है। गो का मतलब जाओ। दे वेंट वो चले गए। दे हैव गॉन वो चले गए हैं। Dear students, now let's read point number C. As you can see, there is written we use the present perfect for an action in the past with a result now. कि हम इस्तेमाल करते हैं present perfect को एक ऐसे काम के लिए जो कि माजी में तो हुआ था लेकिन उसका रिजल्ट हाल में है। with a result now का मतलब उसका रिजल्ट हाल में है। ये बहुत अहम पॉइंट है डियर स्टूडेंट। अगर आपने कोई कार्य शुरू किया और उसको ख़त्म कर दिया है तो देखना ये होगा कि उस ख़त्मशुदा काम का असर हाल में मौजूद है या नहीं है। अगर हाल में मौजूद है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, चाहे उसको ख़त्म किए हुए 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन साल भर 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो गया हो। अगर रिज़ल्ट हाल में मौजूद है तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बाइक आज से 10 महीने पहले ख़रीदा, ठीक है, लेकिन आज भी उस बाइक की कंडीशन बिल्कुल चमकती हुई है, यानी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शोरूम से आया है। तो शोरूम से जब भी कोई बाइक खरीद कर लाते हैं आप तो उसमें जिद्दत होती है, उसमें नयापन होता है। और 10 महीने पहले जो बाइक खरीदी गई उस पर अभी भी जिद्दत है, नयापन है। तो कोई भी बंदा उस गाड़ी को देख करके ये कहेगा कि भाई साहब आपने इस गाड़ी को कब ख़रीदा है, मतलब यानी रिसेंटली आपने इसे ख़रीदा होगा, हालांकि उसको ख़रीदे हुए क्या है 10 महीने हो चुके। सो डियर स्टूडेंट, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है कि काम रिसेंटली ख़त्म हुआ है या लॉन्ग टाइम अगो यानी काफ़ी समय पहले ख़त्म हो गया है। पॉइंट ये है कि ख़त्मशुदा काम का असर हाल में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करो, माजी करीब, और अगर मौजूद नहीं है तो आप पास्ट सिंपल यूज़ कीजिए, माजी बाइद। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ मिसालों से समझते हैं। आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया है। वेयर इज लिंदा, लिंदा कहाँ है। शी इज़ गॉन टू बेड, वो सो गई है। वी हैव बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई गाड़ी खरीदी है। इट्स रेकेल्स बर्थडे टुमारो, कल रेकेल का बर्थडे है। एंड आई हैवेंट बॉट हर अ प्रेजेंट, और मैंने उसके लिए कोई भी तोहफा नहीं खरीदा है। बॉब इज़ ऑन हॉलीडे, बॉब छुट्टी पर है। ओ वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ गया है। कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या मैं ये न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। हैव यू फिनिश्ड विद इट, क्या आपने इसे पूरा कर लिया है। इन तमाम जुमलों में गौर करें कि जितनी जगह भी आपके सामने बोल्ड वर्ड नज़र आ रहे हैं, जैसे कि गॉन, बॉट, हैवेंट बॉट, गॉन, हैव, फिनिश्ड, इन तमाम जुमलों में हैव हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ईडी वाला फॉर्म लगा है या वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। लिहाजा कहीं भी अगर आपको हैव और हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नज़र आए तो आंख बंद करके आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट तस्वुर कीजिएगा। चुनांचे ये सारे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, इतनी तफसील से समझाने के बाद आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आ गया होगा। सो अब मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देखिए, अगेन देखिए। आप रिकॉर्डेड क्लास लिए हैं, रिकॉर्डेड क्लास का यही फ़ायदा है कि आप एनी टाइम जब चाहें तब देख सकते हैं। मेनी टाइम्स, जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं। 1 मरतबा में नहीं समझना है 2 मरतबा देखिए, 2 मरतबा में नहीं समझ में आ रहा 3 दफ़ा देखिए। जबकि लाइव के अंदर ऐसा नहीं होता है। लाइव के अंदर एक सबक को 1 दफ़ा मैं पढ़ाता हूँ, अगर उसी सबक को आप 2 दफ़ा देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। अब हम अगले दिन अगले सबक पर हम बहस करेंगे। तो रिकॉर्डेड कोर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बशर्ते के ध्यान से पढ़ा जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर में अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो इसको फिर से देख लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके एक्सरसाइज पर हम नज़र डालते हैं। 15.1 में यहाँ लिखा है, डियर स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखिए। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है। चूज़ फॉर्म, और फॉर्म का चूज़। तमाम तस्वीरों को गौर से देखिए और तस्वीर को मद्देनज़र रखते हुए जुमले को तकमील कीजिए। और डियर स्टूडेंट्स 15.2 में साहिब किताब कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंस विद अ वर्ब फ्रॉम द लिस्ट, कि आप नीचे के यके बाद दीगरे जो 12 जुमले हमने लिखे हैं, हर एक जुमले में खाली जगह है, आप जुमले को मुकम्मल तौर पर पढ़िए
और करीने क़ियास से आपको क्या समझ में आता है, कौन सा वर्ब का सही फॉर्म यहाँ पर भरा जाना चाहिए, जो आपको समझ में आता है उसके मुवाफिक जुमले की तकमील करिए। आपने सही लिखा है या गलत, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए इसी किताब के आखिर में जो आंसर शीट है उससे अपने बनाए हुए जुमलों को मैच कीजिए। अगर आपने ठीक उसी तरह बनाया है जो करेक्ट आंसर वहाँ दिया गया है तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो इसकी इस्लाह कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।